Okay. So liquid reactant A decomposes as follows. A goes to R and S. Parallel reactions. R of R is equal to Kc1 Ca square, K1.4 cubic meter per mole per minute, and Rs is equal to K2Ca. K2 is equal to 2 minute inverse. A feed of aqueous A, Ca not equal to 40 moles per cubic meter, enters a reactor, decomposes, and a mixture of A, R, and S leaves. 7.8 is for mixed flow reactor, so we will not do this. Time बचा तो करेंगे. You can do it on your own. I will not do it because it's very simple. We will do 7.9, which is find Cr and Cs and tau for X equal to 0.9 in a plug flow reactor. We have solved similar problem before. I think example 7.2 similar था, right? We are going to do similar thing here. तो कैसे करेंगे? याद है किसी को? How to proceed? तो psi का इक्वेशन निकालना पड़ेगा सर. Psi का इक्वेशन निकालना. What is psi? What is psi? What is psi? सर वो इंस्टेंटेनियस फ्रैक्शनल R/A. R by निकालना है, क्या निकालना है अपने को? What do we need to find out? R by ठीक है, R by निकालेंगे हम. What is R by? psi R by? सर DCR by minus DCR by minus DCA. ठीक है. So what is DCR by minus DCA? So it is DCR. ठीक है. So what is DCR by DT? K1C square. K1C square, correct. And what is minus DCI by DT? Same. दोनों रेट्स का एडिशन करेंगे सर. दोनों का एडिशन करेंगे. माइनस DCI by DT हाँ. राइट. ये इधर से भी रिएक्शन हो रहा है, इधर से भी रिएक्शन हो रहा है. So it's going to be both K1 Ca square plus K2 into Ca. ये आपको याद रहना चाहिए. Always remember, parallel reaction में A is decomposed by both the reactions. So minus DCI by DT is always going to be sum of both. Okay, so now we know the values of K1 and K2, 0.4 and 2, right? So 0.4 is K1, okay. So next क्या करेंगे? What is the next step? सर वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना. कैसे करेंगे सिंपल? बताओ ना. सर 0.4 CA स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. 0.4 C square. नहीं 0.4 CA से. करेक्ट. तो यहाँ पर CA है सिर्फ यहाँ पर, so you cannot divide by CA square. Denominator 1 by something आ जाएगा, right? So divide so what will get? CA upon CA plus क्या आ जाएगा?
5. So that's what we'll get. What is the next step then? Phi निकालेंगे सर. Phi निकालना. How do you find out phi? What is the formula for phi? You're going to tell me. I'm just going to write. 1 upon delta C integration of psi dc. बराबर है क्या? So what is delta CA? CA minus CA naught. CA minus CA naught. What are the values of CA and CA naught? Sir, 4. CA naught 40. CA naught is given 40, right? And CA 36. So we know that CA naught is equal to 40 moles per liter and XA equal to 0.0. So CA is equal to 4 आएगा सर. 4 36 रिएक्ट होएगा. 4 बचेगा. 4 आएगा. ओके, ठीक है. So 4 आएगा. So we know CA, we know CA naught. So 4 minus 40 minus 36. ठीक है. So now we can find out phi R by A is equal to minus 1 upon 36 integral CA naught is 40, CA is 4, right? And psi is CA upon CA plus 5. ठीक है. So need to integrate this. How will you integrate this? Plus 5 minus 5. Correct. So 1 upon minus 36. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रल इसका? What will be the integral? ln CA plus 5. ठीक है.
ये क्या आ जाएगा वैल्यू इसका? -1.60 -1.60 60। 61 है। हाँ वो 9 है तो अप्रोक्सीमेट करके 1 हो जाएगा। राइट। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये टर्म ये दोनों का? -27.95। -27.95 तो क्या हो जाएगा? 0.7765। Okay. So now you know this pi. How will you find out R? Phi multiplied by minus delta C. ठीक है. So and CR 0 is 0. So CR minus 0 is equal to what is the value of CR? -27.95। That's the value of CR. Okay. ये निकाला था हमारे को, राइट? CR एंड देन CS भी निकालना है एंड टाउ. तो CS कैसे निकालेंगे? How will you find out CS and tau? सर अब वो psi s by a निकालना पड़ेगा। हाँ? psi s by a निकालना पड़ेगा, फिर phi s by a। और कोई मेथड है क्या? हाँ सर, टोटल रिएक्ट हुआ है 36, उसमें से 27.95 का CR बन गया, क्योंकि दोनों से एक एक मोल ही बन रहा है, तो जो बाकी रहेगा उसका इस बनेगा। Excellent. So you can do material balance. This you can apply anytime, anywhere, right? So CA minus बराबर. This CA reacted. So
CS कितना आएगा? 8.0405 ओके। ओके, सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई मटेरियल बैलेंस। ये पहले बताया था मैंने आपको। इफ यू नो टू थिंग्स, थर्ड थिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट। यू डोंट नीड टू डू फाई ऑफ S by A। वो भी करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगेन यू हैव टू स्पेंड टाइम, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स PFR, राइट? आंसर वही आएगा, यू गेट द सेम आंसर बट देन यू स्पेंड मोर टाइम। ठीक है, सो टाउ कैसे निकालेंगे अभी? हाउ टू फाइंड टाउ? सर वो परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है? लेना पड़ेगा ना पीएफआर का। क्या है? आई डोंट नो, यू टेल मी। आप टाउ लोग इक्वल्स टू सी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x a dx अपॉन माइनस आर 0 to x a। हाँ okay. कैसे करेंगे? यू टेल मी, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट। अभी आपको पूरा बेसिक पता है, अभी यू नो एवरीथिंग। अभी सब हमारा जो है, वी आर ऑल जस्ट डेवलपिंग सम एडिशनल स्किल्स, और कुछ नहीं है। जो बेसिक था वो फर्स्ट 3 यूनिट्स में कवर हो गया। ऑल फंडामेंटल्स आर कवर्ड इन फर्स्ट 3 यूनिट्स। उसके बाद से ऐसे ही है, टॉपिंग्स है उसका, बोलते हैं ना केक एंड टॉपिंग्स, तो टॉपिंग्स ही है और कुछ नहीं है। तो डिफाइन और टाउ नो। सर वो माइनस आर को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, K1 CS² प्लस K2 CS। ठीक है, बताते जाओ, मैं करते जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग नाउ। You have to tell me and I'll write whatever you tell me. K1 CA² plus K2 CA। okay? इसके बाद फिर CA को रिप्लेस करना पड़ेगा, CA0 into 1 minus x। CA0 K1 CA0 square 1 minus XA whole square plus K2 CA0 1 minus XA। बराबर है? अब क्या करेंगे? सी नॉट को कॉमन लेके ठीक है, CA0 कॉमन आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना? हाँ सर बड़ा इंटीग्रेशन है। करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? हाउ टू डू इंटीग्रेशन नाउ? सर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। फिर वो स्पेशल इंटीग्रेशन रहता है ना, 1/x² प्लस bx का। कॉम्प्लेक्स है कि ये? क्या सर? इतना कॉम्प्लेक्स है क्या? देवेंद्र सो रहा है क्या? देवेंद्र हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? सर आ रहा है इतना सर। सर हाँ, कैसे करेंगे बताओ ना। सर वो सिंप्लीफाई करना है सर, K1 और K2 के वैल्यू डालेंगे आगे। सिंप्लीफाई होता है सर, 2.4 कॉमन आता है, वो कॉमन लेके वो बाहर निकालेंगे और 1/x से रहता है उसमें। सर वो आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको। कैसे करेंगे वो? मेरा क्वेश्चन वही है ना, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हाउ टू डू दैट? क्या कैसे करेंगे? देवेंद्र सुन रहा है कि नहीं? सो रहा है? सर अगर x की वैल्यू डाल दे तो
dxa को हाँ? ca में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? dxa को ca में कन्वर्ट करेंगे, इतना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे रे? क्वेश्चन इज दैट। सर तो फिर वो ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। हाँ, लेकिन इतना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर आएगा बीच में, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? सर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्या हम? एक्स से वी नो एक्स है ना। क्या एक्स से क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? 0.9 इज गिवन ना। इंटीग्रल है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हाँ उसमें नहीं डाल सकते। मैंने ये प्लग फ्लो रिएक्टर क्यों लिया? मिक्स फ्लो रिएक्टर इसका पहले का प्रोसेस इजीली कर सकते हो तुम लोग, राइट? इसलिए मैंने इसके पहले का क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, बिकॉज इट इज सिंपल। प्लग फ्लो रिएक्टर में ही तकलीफ होती है ना कभी भी, इंटीग्रल रहता है उसमें। क्या करेंगे भैया? कोई आइडिया है किसी को? दीक्षिता? सर वो हम वो पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। करो ना, करके बताओ ना। यू आर एट होम, टेक योर नोटबुक and do the integration. Tell me. I'm going to just write down what you tell me. ना सी टाउ पी एफ आर का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी ए नॉट टू सी ए डी सी ए बाय माइनस आर ए। एक ही बात है ना, माइनस डी से बाहर है किया या डी एक्स से बाहर है किया, बात तो वही रहती है ना। क्या फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर तो वही आएगा ना, माइनस आर ए। रितेश? हाँ हाँ सर। न्यूमरेटर थोड़ा चेंज हो जाएगा बट डिनोमिनेटर तो वही आएगा ना, अपने इंटीग्रल तो वही करने का है ना। Who has any ideas? Somebody. I want somebody to think. शिवानी? सिद्धि? सर वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर है इसलिए सिंपल होगा ना उसमें, अगर एट फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सर वन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों एडिशन है डिनोमिनेटर में, दोनों का एडिशन हो रहा है डिनोमिनेटर में। सर 1 माइनस एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। करो ना तो। हाँ करता हूँ। मैं मना थोड़ी किया किसी को करने के लिए, करके देखो। करके देखो और बताओ मेरे को कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा देवेंद्र? हाँ सर ट्राई करता हूँ। सिद्धि क्या हो रहा है, सो रहे है क्या? नहीं सर। तो कोई आइडिया नहीं है कैसे करने का? सर सोच रही हूँ। सोचो। दीक्षिता? टॉपर्स क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करके हाँ? 1 माइनस एक्स को इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करके करके जो क्या आइडिया अच्छी है, करके देखो होता है क्या। करके देखो होता है क्या। I'll give you 5 minutes. Think out of the box. थोड़ा सोचो, हमने बहुत कुछ किया है अभी लास्ट एक हफ्ते में। लास्ट एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखा है। थिंक।
ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस करो अभी, कर सकते हैं। बराबर है क्या? This is correct, A and B values. कितना टाइम लगता है रे? यस सर, यस सर। ठीक है क्या देवेंद्र? दीक्षिता? यस सर। कितना टाइम लगता है रे? दीक्षिता खो गई क्या? नो सर, कर रही हूँ। सर 0.3466 टाउ। एंड 3466। 3 करीब आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 3 4 इज ऑल्सो फाइन। ओके, सो क्या है इंटीग्रल इसका? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म? ln x के माइनस और इसका? ln 16 x minus 18/16 बराबर है क्या? by 16। 16. Okay, so then you have to put limits here, 0 to 0.90, 0 to 0.90.
कैसे जाएगा ये? ओके, what is this thing? ln of 0.1. क्या है इसका वैल्यू? ln of 0.1. What is the value of 0.1? ln 0.1. और किसका हो गया? किसका हुआ? सब सो रहे लगता है। देवेंद्र हो गया क्या? कितने लोग का हो गया? लेट मी सी हैंड्स। रितेश, विश्वजीत, सिद्धि, वैभव। देवेंद्र क्या हो गया? सो रहा है क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ सर। कितना टाइम लगता है रे? मेरे बाद मैंने चालू किया। दीक्षिता क्या हो गया? सर कर रही है। Why it takes so much time? I don't understand. Very simple. लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। Is there another way of doing it? Anybody?
other simpler method of doing it which you have not used. ये बहुत लेंदी मेथड यूज किया, बट देयर इज सिंपलर मेथड ऑफ डूइंग इट. पता है किसी को? सर शायद वो v/v0 से कर सकते. v/v0 कहाँ दिया है हमारे को? दिया है क्या v/v0? Is the data given? We have to work with the given data. अभी डेटा नहीं दिया है तो फिर ख्याल ही पुलाव है. v दिया रहता, v0 दिया रहता तो डायरेक्टली कर लेते हम. फिर उसमें कुछ है, दम ही नहीं है क्वेश्चन में. सर वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है ना? कौन सा? सर वो dCr/dt इज इक्वल टू k1 है ना? हाँ. तो you are thinking right. You are thinking on the right lines, Devendra. हाँ सर, तो फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही टाइम मिलेगा ना, तो इजी इंटीग्रेशन. Excellent. So you don't have to do this thing. So हमने लिखा था क्या, tau is equal to CA naught integral dxa by minus r, right? So we can write, or let's say क्या था उसमें, माइनस इंटीग्रल dca by minus r, बराबर. ये मुश्किल हो जाएगा बिकॉज x से आएगा टर्म इसमें. What I think you cannot do it like from x, you have to do it from r, ca. तो इसमें you can write tau is equal to integral dcr by minus r of r. So if you put this, what you'll get is dcr by k1 ca square, है ना? k1 ca square. Now you need to find relation between cr and ca. What is the relation between cr and ca? सर वो साई का रिलेशन था ना? CR0. सर साई का रिलेशन था ना? कौन सा? साई इज इक्वल टू dCr by minus dCA. ओके, तो इससे क्या मिलेगा हमारे को? dCr equals to psi into minus dCA पुट करेंगे. तो वही होगा ना फिर. साई कहाँ से आएगा? घूम के ही आएगा ना, घुमा रहे उसको राउंड एंड राउंड. क्या सर CR को लिख सकते हैं ना, CR0 माइनस CA0 x. CR0 माइनस CA0 x. ओके, फिर x से आ गया ना. हाँ. कैसे करेंगे फिर?
सर DCR को माइनस DCA नहीं लिख सकते क्या हम? DCR को माइनस DCA कैसे? सर जब हम रेट इक्वेशन लिखते तो बोलते हैं ना कि DCA by dt माइनस DCA by dt को DCR का reaction है. DCA is actually it is DCA equal to minus DCA is equal to DCR plus DCS. ऐसा है. Not only with Yes. R and S भी फॉर्म हो रहा है ना. ठीक है, सोचने वाली बात है. आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ. I never thought about along these lines, but there is another way of doing it. Still another way of doing it. There is one way of doing it. क्या था हमारा इक्वेशन टाउ का? ये है ना इक्वेशन टाउ का. What we need to do is you need to find the integral, right? बराबर. और कल हमने प्रैक्टिस किया था. देवेंद्र, हाँ सर, क्या किया था? वो एरिया अंडर द ग्राफ निकाला है। यही तो किया था हमने. वही तो किया था, इसलिए बोला सोचो थोड़ा. इस वीक में हमने किया है ये पूरा. राइट. you'll get some curve. ऐसा भी आएगा, डजेंट मैटर, बिटवीन 0 एंड 0.9 आपको इंटीग्रेट करने का है. एरिया अंडर द कर्व निकालने का. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आर ए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. सो व्हाट यू डू इज ड्रॉ अ टेबल. सर वो कैसे डिसाइड करते कि x एक्सिस पे क्या होगा और y एक्सिस पे क्या होगा? एक्स एक्सिस नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है कभी भी. हाँ सर, हाँ एक्सप्लेन क्या था? y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है एकदम. ओके, सो टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ए. 0, 0.1, 0.2, 0.3 up to 0.9. Calculate minus RA. कैसे कैलकुलेट करें माइनस RA ना? What is minus RA? सर वही सर DC R प्लस K1 CS plus K2 CA, right? And that is equal to K1 CA naught square 1 minus XA whole square plus K2 into CA naught 1 minus XA, right? So you took different values of XA. C naught पता है, K1 पता है, K2 पता है. You can find out minus RA, right? Then find out minus 1 upon minus RA and plot it. प्लॉट करके एरिया अंडर कर्व निकालो. एंड दिस आई गिव यू एज एन एक्सरसाइज होमवर्क असाइनमेंट. करके कल बताओ मेरे को कितना आता है आपका टाउ. ठीक है. What we had done yesterday was for a mixed batch reactor. There is no difference between batch reactor and plug flow reactor, right? Performance equation is same. इतना आपको याद रहना चाहिए. Batch reactor PFR calculations are same. So you should be able to use the same concept here also. ठीक है. Any questions, doubts? तो ये करके होमवर्क असाइनमेंट है सबके लिए. I want to see who does it and what you get as answer. You will not get exactly same answer जो हमको analytically मिला, but it will be close. ठीक है.
So any questions on Unit 4? We'll stop Unit 4 here because we have to cover Unit 5 and Unit 6 also. Problem similar ही है. There are different types of problems. मैंने बताया आपको 7.6, 7.7, 7.8. They're all similar examples. You can always solve it easily. उसके लिए Unit 5 की जरूरत, 4 की जरूरत नहीं है. Unit 1, 2, 3 की बेसिस पे भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स है वो. So easy to do it. You can do it any way you want. Unit 4 का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो करो. Unit 3 का भी करना है तो करो. Doesn't matter. एग्जाम में कोई नहीं देखने वाला कैसे किया आपने. वैसे भी आपको MCQ आने वाला है, राइट? बट कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए. तो शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. एंड इसका टेस्ट हम कब रखेंगे? वांट MCQ टेस्ट, राइट? Yes. सो अपने पास लेक्चर्स बहुत कम है और 2 यूनिट और कवर करने के हैं. सो व्हाट वील डू इज because it's going to be MCQ, we'll finish it in 10-15 minutes, right? So we'll keep it on Saturday afternoon. चलेगा? तो Yes, वही sir, चलेगा. Saturday afternoon at 2 p.m. चलेगा सर. Anyway, it's going to be short, 15 MCQ questions. You should finish in 10-15 minutes. And that's what we'll do. Next Saturday को हम Unit 5 का लेंगे टेस्ट और उसके बाद के सैटरडे को Unit 6 का लेंगे. So 3 Saturdays, 3 unit tests. Unit 4, 5, 6 ब्लॉक करके रखो. ठीक है? So we'll stop here.